in the continuation of the leaf, it is the back tooth of the leaf. So the apex, margin, shape of leaves vary in different plants. So all the leaves of all the plants are not of same size, are not of same shape, are not of the same margin, and its apex is also different. So apex, margin and leaf shape varies from plant to plant. Okay. So if we consider in the NCERT book, it is only given shape, margin, apex, surface, and extent of incision also varies. Another word is there, another sentence is there. Extent of incision also varies. So incision का मतलब क्या है? Suppose आप देख रहे हैं कि leaf, suppose we find this one is a leaf. So here you can mark the margin is entire or smooth. But if you will find in another case, here the margin is incised. That means it is folded. The folding is known as the incision. And the extent of incision varies. So here a little incision is there. Here is the little incision, but the incision may be very much. You can see here in this diagram, you can see here the incision at too much. So you can study these three types of leaves. Here the margin is entire, smooth margin, entire margin. Here is also incision, here is also incision. So the incision is smaller here. The foldings inwardly folding are called incisions. The incisions are smaller here, but here the incisions are larger. So there are different types of incisions in the leaf. So we will study it briefly because it is not in your course. In NCERT, only it is given in the page number 7. It is only given the first paragraph, last 2-3 lines you follow. Shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. So we will just give some examples on this. So we will first study the apex of lamina or apex of leaf, or known as leaf apex. Leaf apex में भी बहुत सारे different type of leaf apex are there. एक तो है acute apex. Acute मतलब जैसे acute angle होता है ना, so very thin, not broad, thin, narrow. जैसे कि less than 90 degree. So thin apex and narrow apex. That is less than 90 degree. So example है mango, mangifera. So आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा मैंगो लीफ को, उसका जो टिप है, लीफ का अपेक्स है, that is very narrow. So that is called as acute apex. Next is acuminate or known as the caudate. मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है. एनसीईआरटी में ओनली क्या है कि शेप, मार्जिन, एपेक्स एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन वैरीज. बस ये 2 पॉइंट दिया है. क्या क्या एपेक्स है, क्या क्या मार्जिन है, शेप किस टाइप का है, मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा. जो इम्पोर्टेंट है वही चीज बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइप का है, तो मैं ओनली जो इम्पोर्टेंट है वही चीज बताऊंगा. सो एक्यूमिनेट मतलब काउडेट. सो आपको इसका तो डायग्राम इतना जरूरत नहीं है, जस्ट वेरी thin narrow apex less than 90 degree. You just mark the apex here. So accumulate का मतलब है crowded. Crowded का मतलब कुछ, मतलब टेयर. जैसे कि leaf apex आपने देखा होगा people tree. You might have observed in the people tree there is the leaf is here and there is a tail like
proceedings in the apex, a tail-like structure. So this is called as acuminate apex or crowded apex. Apex thin, narrow, tail-like. So here apex is thin, narrow and tail-like. Here is also thin and narrow, but here is not tail-like, but here is tail-like. So example, people tree is the scientific name is Ficus religiosa. Ficus religiosa. That is called as creeper. This is another kind of apex, acuminate apex. Obtuse apex. Number 3 है obtuse. Obtuse मतलब अब जैसे obtuse एंगल होता है more than 90 degree, जो चौड़ी होगा, broad होगा, that is called as obtuse, broad and round. Broad and round, that is more than 90 degree. That is called obtuse apex. और ये किस प्लांट में दिखाई देता है? ये बनाना प्लांट में दिखाई देता है. एग्जाम्पल है बनाना. इसका साइंटिफिक नेम है मूसा. मूसा इज बनाना. आप और banana का leaf देखेंगे. This is the banana leaf and the venations are parallel venations. Okay. इसका जो apex है, this is the leaf of banana plant. जो केला का ये होता है, पत्ता होता है. आप उसका टिप देखिए, apex देखिए. That is broad apex. This apex is very broad. That is more than 90 degree. That's why it is called obtuse apex. Okay. Next is spiny or cuspidate. Spiny apex. Number 4 is spiny. क्या इसको बोलते हैं? Cuspidate. इनकी apex spine जैसा दिखाई दे रहा है. Apex is looking like spine. Apex is hard, pointed, spinous. Apex is hard, pointed and spinous. So इस टाइप का apex कहाँ पर दिखाई देगा? That is in the phoenix plant and pandanus plant. Phoenix क्या है? Phoenix is date palm. जो खजूर होता है ना, खजूर. So खजूर का leaf अगर ऑब्जर्व करेंगे, you will find the leaf tip or leaf apex is spinous. Another example is also there, that is pandanus. Pandanus is known as screw pine. Screw pine. ओडिया कोटली किया गछ. Screw pine. Pandanus. Spiny apex. Then is the tendriller apex. So in some leaves, in some plants, the apex of the leaves are modified to tendril. That is apex modified to tendril. That is known as tendriller apex. So tendril apex. Number 5. Tendriller. Here apex is modified tendril. Example है gloriosa. It's very important. You have to remember this. अभी हम apex पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका लीफ मॉडिफिकेशन में भी जो आपका 71 नंबर पेज में है, मॉडिफिकेशन लीफ हार्ड लाइन में देखिए, that converted into tendrils.
यहाँ पर अपेक्स नहीं दिया है, वो ओनली दिया है कि लीफ इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स। तो लीफ का डिफरेंट पार्ट टेंड्रिल हो सकता है। इन द लास्ट वीडियो और लास्ट क्लास यू हैव ऑब्जर्व दैट आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ नेपेंथस पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का जो पिट्यूल है वो टेंड्रिल बनता है, यहाँ पर जो अपेक्स है वो टेंड्रिल। लाइक दिस bulbosa, just look at the diagram. This is the leaf. Here the apex is like this. The apex modified to tendril. Apex is modified to tendrilar structure. Okay. So next to it, we will go to margin of leaves. ये हमारा apex के बारे में हो गया. You have to remember this example. Tendrilar apex is in gloriosa. Gloriosa का जो इंग्लिश नेम है इसको बोलते हैं ग्लोरी लिली. Glory lily. So gloriosa is called as glory lily. The leaf apex is modified to tendril. That means tendrilar apex is found in glory lily. Next we go to the margin of leaves. We move to the margin of leaves. तो जैसे आपने स्टडी किए हैं apex वेरियस टाइप का है और वेरियस टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ है, उसी टाइप का मार्जिन भी, लीव्स का मार्जिन भी वेरियस टाइप का मॉडिफिकेशन है. एक एंटायर मार्जिन. Margin of leaves. Entire margin. मतलब मार्जिन में कोई फोल्डिंग्स नहीं होगा. Margin looks entire. You just mark here the margin is not having any foldings or any teeth-like structures. Nothing else. The margin is smooth and entire. Smooth and straight, not incised. So smooth, straight. यहाँ पर कोई फोल्डिंग नहीं है, कोई फोल्डिंग नहीं है, not incised. Example, mango, that is mangifera. So mango में आएगा. So in the mango leaves, then is the banyan leaves. आज एग्जाम्पल banyan, बरगद का जो पेड़ है ना, उसमें भी ऐसा दिखाई देगा. Number 2 is wavy. Wavy margin. So margin become wavy like this. Margin is wavy. I mean the wave-like structures are found in the margin. That is called wavy margin. Wave-like structures. Wave-like. Example, Polyalthia. Polyalthia is the scientific name. तो आपको मालूम है कि देवदारू जो ट्री है, तो देवदारू का लीफ अगर ऑब्जर्व करेंगे काइंड ऑफ वेवी मार्जिन. देन इज सीरेट मार्जिन. सीरेट मार्जिन का मतलब है टूथ मार्जिन. नंबर 3 सीरेट. सीरेट मार्जिन टूथ टाइप का होगा, तो इस टूथ मार्जिन. So यहाँ पर देखेंगे टूथ टाइप का अपीयरेंस है like this. टूथ मार्जिन. टूथ टाइप का मार्जिन है. एग्जाम्पल है हिबिस्कस.
we discuss a China rose. In China rose plant, you just watch the leaf of the China rose plant, you will find there is tooth margin. The tooth margin is called as serrate margin. This is spiny margin. Number 4 is spiny. So this is teeth-like structure, not spinous. It's not hard and pointed. It is pointed, but it's not hard. So it is called teeth or serrate, not called as spiny. But there is hard structure, pointed, that is called spiny. So spine-like margin. So spine-like. Spine-like. Spine-like margin. Okay, so it is found in different plants like the ananas, arjamon, examples. So here in the spiny margin, you find the example, that is ananas, another is arjamon, ananas, prickly poppy, ananas is pineapple. Okay. So after the margin, next we go to the shape of lamina. Shape of lamina, there are different kinds of shape of the lamina. Number one is acicular. It is long and pointed. Shape of lamina, acicular is long and pointed. Very narrow lamina is there. The surface is very narrow, long and pointed. This is the example of onion leaves. Onion. That is called acicular lamina. This is called acicular. Okay. Lanceolate. Lanceolate. That is broad at middle. Lanceolate. Broad at middle and narrow towards to edge. बीच में ब्रॉड होगा, ठीक है ना, और दोनों तरफ वो नैरो हो जाएगा. So gradually narrow. तो you just look, इसमें ब्रॉड होगा, दोनों तरफ नैरो होगा. इसको बोलते हैं lanceolate, जिसका एग्जाम्पल है नेरियम. Nerium is, English name is oleander. Oleander के leaf का shape lanceolate. Okay. Linear, long, narrow, almost parallel margin. That is called linear.
long, narrow and almost parallel margin. So margin almost parallel, almost parallel. इसे लंबा सा होगा, almost पैरेलल होगा, बहुत नैरो होता है और ऑलमोस्ट पैरेलल मार्जिन होता है, और ये होता है व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? इट is wheat. Okay. Let's go to the number 4. Number 4 is ovate, egg shaped. ओवेट मतलब एग शेप। अंडा होता है ना, उस टाइप का शेप का लीफ होगा, एग शेप लीफ, दैट इज कॉल्ड एज ओवेट लीफ, एग शेप लीफ। ओके, ब्रॉड बेस, नैरो टॉप। इसका मतलब क्या है? ब्रॉड बेस एंड नैरो टॉप। तो बेस चौड़ा होगा, टॉप नैरो है। जैसे अंडा दिखाई देता है ना, इस टाइप। तो ये एक्चुअली चाइना रोज में, तो ऑलरेडी हैव स्टडी चाइना रोज में टिथेड मार्जिन है, टूथ मार्जिन, ठीक है ना। चाइना रोज को लिख कर थोड़ा स्टडी कीजिएगा। टिथेड मार्जिन है लाइक दिस, लेकिन मार्जिन तो सिलेटेड है टिथेड, लेकिन जो शेप है अंडा टाइप का है। दिस चाइना रोज एग्जांपल वी डिस्कस। कॉर्डेट, ब्रॉड बेस एंड बाइलोब। कॉर्डेट का मतलब है हार्ट शेप। बेस इसका ब्रॉड होगा, ब्रॉड बेस एंड बाइलोब। ये पार्ट का पता है ना, तो इसका बेस जो ब्रॉड है एंड इसका लोब, दो लोब है बेस में। सो एग्जांपल है पाइपर बीटल। प्लांट का नाम है पाइपर बीटल। क्या इसका बोलते हैं? बीटल प्लांट। प्लांट का इंग्लिश नेम है बीटल। ये है कॉर्डेट। ओब्लॉन्ग, लॉन्ग ब्रॉड लैमिना, राउंड अपेक्स। ओब्लॉन्ग इसको बोलते हैं। लॉन्ग ब्रॉड लैमिना with rounded apex। apex इसका राउंडेड होता है और लॉन्ग एंड ब्रॉड है। ये केला का पत्ता है। एग्जांपल इज मूसा। इसका नाम है मूसा पाराडिसिका। मूसा पाराडिसिका, दैट इज बनाना ट्री। उसका पत्ते ओब्लॉन्ग टाइप का है। उसका जो लैमिना है वो लंबा है, चौड़ी है, और अपेक्स उसका राउंडेड है। दिस इज कॉल्ड एज ओब्लॉन्ग लैमिना। सैगिटेट मतलब ट्रायंगुलर, आरो हेड जैसे दिखाई देता है।
सैगिटेट। ट्रायंगुलर होगा इसका स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर है और इसका जो हेड है यानी कि एपेक्स है वो आरो टाइप का दिखाई देगा, एरो हेड लाइक दिस। इस टाइप का है एरो हेड, जैसे ट्रायंगल टाइप का है, एरो हेड जैसे इसका एपेक्स है यानी कि सेट है। एग्जांपल है क्रैब में, इसका नाम है सैगिटेरिया, क्रैब का नाम है सैगिटेरिया और इस टाइप ऑफ लैमिना इज कॉल्ड एज सैगिटेट। उसके बाद स्पैकुलेट, हमारी स्पैकुलेट स्पून जैसे दिखाई देगा, स्पून लाइक लैमिना, लैमिना स्पून जैसा दिखाई देगा। स्पून लाइक जो राउंडेड है, स्पून जैसा दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नोन एज स्पैकुलेट, स्पून लाइक। इसका एग्जांपल है लिथिया, एक प्लांट है इसका नाम है लिथिया, ये स्पैकुलेट टाइप का लैमिना। उसका है रोट्यून्ड, लास्ट टाइप है लीफ लैमिना का टाइप का, ये लास्ट टाइप। रोट्यून्ड मतलब स्फेरिकल शेप, राउंडेड। स्फेरिकल शेप का मतलब राउंडेड, राउंड वाला लैमिना होगा, स्फेरिकल शेप का राउंडेड। आपने देखा होगा कमल के पत्ता, जो कमल के फूल उसको बोलते हैं पद्म फूल। पद्म फूल जो होता है ना, उसका जो पत्ता होता है वो राउंड होता है, जो पानी के सरफेस में रहता है, दैट इज कॉल्ड रोट्यून्ड। एग्जांपल इज, इसका साइंटिफिक नेम है नेलुम्बो। नेलुम्बो मतलब लोटस, लोटस प्लांट का जो लीफ है वो एक्चुअली राउंडेड है, rounded leaf is called rotunde, spherical shape and the rounded leaf। aquatic plant में है, जो कि aquatic plant में पानी के ऊपर में इसका जो लीफ है ना, ये पानी के ऊपर में फ्लोट करते रहता है, तो ये aquatic leaf है। So we start the venation of the leaf. Venation of leaf. So first of all you should understand what is venation. The arrangement of veins and the veinlets in the leaf lamina is the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina। तो लीफ की जो सरफेस है दैट इज लामिना, उसपे जो मिड रिब है या मिड वेन है और लैटरल वेन्स है और वेरी फाइन वेन्स आर कॉल्ड एज वेनलेट्स, ऑल आर हाउ दे आर अरेंज्ड। जो वेन्स है, वेनलेट्स है, वो किस ढंग से अरेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। सो मेजरली टू टाइप्स ऑफ वेनेशंस आर देयर, वन इज द रेटिकुलेट वेनेशन, reticulate, another is parallel venation। So reticulate venation mostly in dicots, डाइकॉट कैरेक्टर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ मोनोकॉट भी रेटिकुलेट दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन एंड मोस्टली मोनोकॉट्स। इसमें क्या है, आप देखेंगे एक लीफ है, सपोज इट इज अ लीफ
तो यहाँ पर दिस इज द मिड वेन, मिड रिब, इससे ब्रांच लीफ है, सॉरी ब्रांच वेन्स है, सो ब्रांच वेन्स, उस ब्रांच से फिर ब्रांच निकलेगी, फिर ब्रांच, उसमें से फिर ब्रांच निकलेगा, एक नेटवर्क, जाल टाइप का, नेट टाइप का स्ट्रक्चर होगा ऑन द लीफ सरफेस। हर ब्रांचिंग थिन होते हुए जाएगा, जो मेन वेन है वो सबसे थिक होगा, उसमें से जो ब्रांच निकलेगा वो उससे कम थिक होगा, उसमें से फिर जो ब्रांच, सो हर ब्रांचिंग, ईच ब्रांचिंग वो थिन होते हुए जाएगा, दैट विल फॉर्म ए नेटवर्क ऑन लीफ लामिना, नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेट लाइक अपीयरेंस ऑन द लीफ लामिना, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। और पैरेलल वेनेसन में आप देखो होंगे जो केले की पत्ता है, केले की पत्ता आप देखे होंगे, उसमें देयर इज नो नेटवर्क एंड ऑल द लैटरल वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो मोनोकॉट में रेटिकुलेट, और आपका इनसेट में डायग्राम दिया है रेटिकुलेट वेनेसन एंड पैरेलल का, देखिए तो पैरेलल वेनेसन का भी डायग्राम इस टाइप का दिया है, इस टाइप का पैरेलल वेनेसन का डायग्राम, इसमें भी ऐसे भी पैरेलल हो सकते हैं, इस टाइप this also a parallel, this is also parallel veneson, this is also parallel veneson, so this one is reticulate veneson, okay। so reticulate में क्या है, venlets form a network, so यहाँ पर reticulate में venlets form a network, okay। and parallel में क्या है, veins are parallel to each other within a lamina, veins are parallel to each other in a lamina, lamina के अंदर जो वेनलेट्स है या वेन है वो सब आपस में पैरेलल होंगे, parallel to each other within a lamina। So you can follow the NCERT page number 70, वेनेसन का जो पैराग्राफ है उसका लास्ट 3 लाइन स्टडी कीजिए। Leaves of dicot plants generally possess reticulate veneson, while parallel veneson is the characteristic of most monocots. But there are some exceptions. Exceptions are there. What are the exceptions? देखिए मैक्सिमम डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेसन, कुछ मोनोकॉट में भी रेटिकुलेट हो सकता है, तो ये एक भी एक्सेप्शन है, जैसे कि स्माइलैक्स, डायोस्कोरिया, अलोकाशिया, these are all monocots। स्माइलैक्स, डायोस्कोरिया, अलोकाशिया, these 3 plants are the monocot plants। So monocots with reticulate venetion। So monocot का एक्चुअली पैरेलल वेनेसन होना चाहिए, लेकिन ये मोनोकॉट में डाइकॉट जैसा रेटिकुलेट वेनेसन। नेक्स्ट एक्सेप्शन में कुछ डाइकॉट का भी पैरेलल वेनेसन है, डाइकॉट का रेटिकुलेट वेनेसन होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ डाइकॉट है जो कि पैरेलल वेनेसन दिखाते हैं। उसका एग्जांपल हम लेंगे, डाइकॉट का एग्जांपल एरिंजियम एंड कैलोफाइलम, 2 डाइकॉट का है, एक है एरिंजियम, दूसरा है कैलोफाइलम, that is dicots with parallel venation।
So next we'll go to the types of leaves. So two types of leaves are there. One is the simple leaf, another is compound leaf. सिंपल लीफ वो है जिसका मार्जिन एंटायर हो सकता है या इंसिजन हो सकता है, बट इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप. दो टाइप का है, एक है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ. सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल लीफ क्या है? लैमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड. Lamina is entire or when incised, अगर incised भी हो सकता है, अगर incised होगा, when incised, incisions do not touch the midrib. Incisions do not touch the midrib or tip of petiole. तो देखिए एक सिंपल लीफ है, इसका मार्जिन एंटायर है, और ये देखिए ये भी एक सिंपल लीफ है, ठीक है. इसका इनसाइड मार्जिन है लेकिन मार्जिन टच नहीं किया. ये दो जगह में टच कर सकता है, लेकिन यहाँ पर टच नहीं होता है. आइदर मिडरिब को टच कर सकता है या फिर टिप ऑफ पेटियोल को, लेकिन यहाँ पर neither it touches the midrib nor to the tip of the petiole. और अब देखिए very much incised, फोल्डिंग इसका बहुत जबरदस्त है, लेकिन that incision do not touch the midrib और tip of the petiole. देख सकते हैं यहाँ पर ये इंसिजन, ये तीनों सिंपल है. यहाँ पर इंटर मार्जिन है, यहाँ पर भी इंसिजन थोड़ा सा है, यहाँ इंसिजन बहुत बड़ी इंसिजन, लेकिन दोनों इंसाइज केस में इंसिजन मिडरिब या पेटियोल की टिप, ये जो पेटियोल की टिप इसको टच नहीं करता. ठीक है. और कंपाउंड में क्या है? इंसिजन्स ऑफ द लामिना रीच अप टू midrib or incision of lamina reach up to the midrib. वो midrib को टच कर लेता है, either midrib या petiole tip, apex of the petiole. So when incision of lamina reach up to the midrib or tip of the petiole, breaking the lamina into a number of leaflets, and breaking the lamina into many leaflets. अब देखिए यहाँ पर सपोज देखिए, सपोज ये सिंपल लीफ, ठीक है. अब इसका जो मार्जिन है, ये मार्जिन अगर यहाँ पर जाके टच कर दे इसको, मिडरिब, ये मिडरिब है, तो मिडरिब को टच हो गया, यहाँ पर भी 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 टच हो गया, देखिए अभी टच हो गया. तो क्या होगा? ये जो मिडरिब है, ये मिडरिब एक एक्सिस जैसा हो जाएगा, एक्सिस. इस मिडरिब विल कन्वर्ट एक्सिस, एंड हर जो लोब है, लामिना जो हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया, वो एक लीफलेट हो जाएगा, वो एक लीफलेट बन जाएगा. ठीक है.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो आप कंपाउंड लीफ देख रहे हैं ना, ये सब मिला के एक सिंपल लीफ जैसा है। ये सब मिला के एक सिंपल लीफ ब्रेकिंग डाउन होकर कंपाउंड लीफ होता है। इसका मतलब सिंपल लीफ की जो मार्जिन अगर मिड लीफ को टच कर जाता है तो ये कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवोल्यूशन के टाइम में वही सिंपल लीफ में मार्जिन फोल्डिंग होकर कंपाउंड लीफ हुआ। तो इसका मतलब ये जो सेंट्रल एक्सिस है, जो मिड लीफ था वो एक एक्सिस बन गया, और ये तो जो लैमिना इंटर था वो सब सेगमेंट हो गया। तो ये जो मिडिल वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रैचिस। ये जो एक्सिस बन गया ना, जो मिडिल था वो एक एक्सिस बन गया, दैट इज कॉल्ड रैचिस। एंड द सेगमेंट, जो लीफ का सेगमेंट बन गया, these are called leaflets। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या हुआ? यहाँ पर मार्जिन मिड लीफ पर टच है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखा था? इंसिजन, मतलब मार्जिन का इंसिजन आइदर मिड लीफ को भी टच हो सकता है, पिट्यूल टिप यहाँ पर भी टच हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डायग्राम में, इस डायग्राम में मैंने इंसिजन को टच करवाया मिड लीफ। अभी मैं इंसिजन को टच करवाता हूँ पिट्यूल की टिप को। देखिए ये एक सिंपल लीफ है, और ये जो इंसिजन, ये जो मार्जिन है, इसका फोल्डिंग क्या होगा? देखो टच होगा ये टिप ऑफ द पिट्यूल, दिस वन इज टिप ऑफ द पिट्यूल, और फिर टच होगा टिप ऑफ द पिट्यूल, फिर टच होगा टिप ऑफ द पिट्यूल, टिप ऑफ द पिट्यूल। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा हो जाएगा? तो पॉइंट से, तो ये पिट्यूल का टिप है, तो ये पिट्यूल का टिप है, ठीक है, ये पिट्यूल है, यहां से लीफ निकलेगा, एक पॉइंट से निकलेगा, तो ये भी एक कंपाउंड लीफ है। अब देखो मैं बेल की पत्ता, बेल होता है ना, जोटाको आम ओडिया रे कहू बेल पत्र, वुड एपल, इसका साइंटिफिक नेम है वुड एपल, हाइजल प्लांट। उसमें एक पॉइंट से, पिट्यूल की टिप से 3 पत्ते निकले होंगे, तो ये तीनों लीफ है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का कंपाउंड लीफ है, ये भी एक टाइप का कंपाउंड लीफ है। लेकिन यहाँ पर इंसिजन टच हुआ मिड लीफ को, यहाँ पर इंसिजन टच हुआ टिप ऑफ द पिट्यूल। So these two are the two different kinds of compound leaves. This one is called pinnately compound leaf, and this one is called palmately compound leaf. Pinnate मतलब feather, पंख। So pinnate मतलब feather जैसा, एक्सिस में दोनों साइड में से feather होता है ना, उस टाइप में leaflet है। यहाँ पर palm, जैसे हमारा palm होता है, एक palm का एक पॉइंट से, एक ही जगह से इंग्लिश में निकलते हैं ना फिंगर्स, सो एक पॉइंट से ही यहाँ पर leaflets निकल रहे हैं, ये भी leaflets है, ठीक है। जैसे हमने बताए थे सारे लीफ मिलके एक टाइप का लीफ है, यहाँ पर भी सारे लीफ मिलके एक टाइप का लीफ है, यानी ये कंपाउंड लीफ जब मिल जाएंगे तो दिस ऑल रिप्रेजेंट वन सिंपल लीफ, ओके। ओके, तो उसके बाद so compound leaf जो है, these are two types, you can write it here. One is innately compound leaf, another is palmately compound leaf. Compound leaf is of two types, innately compound leaf and palmately. Look at the diagram of 70 number page. तो नीचे में जो डायग्राम दिया है फिगर 5.8 का ए एंड बी, ए में दिया है innately compound leaf, बी में दिया है palmately compound leaf। तो innately compound leaf में बेटा क्या है? Numbers of leaflets are present on a common axis, the axis. Innately compound
So now we'll start with the innately compound leaf. Already I have told you that when the margin incision of the margin touches the midrib, then the midrib becomes rachis, and the leaflets or the segments of the leaves or the leaflets are present on both the sides of the rachis or the midrib. Then it is called as the innately compound leaves. Okay? So number of leaflets are present. Number of leaflets are present on two sides or the both sides on two sides of a common axis, and that axis is known as rachis. The rachis is the common axis. So on the both the sides of the rachis, the segments of the leaves or the lamina, those are called as the leaflets, are present on the two sides of the rachis, and this rachis represents the midrib of the leaf. This rachis represents the midrib of the leaf. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में अजाडिरेक्टा। अजाडिरेक्टा का मतलब है नीम, and you can follow the diagram also there. So you can follow the diagram. These are the neem leaves. This is rachis and these are leaflets. So now we go to the compound leaf, another type of compound leaf, that is known as the palmately compound leaf. So palmately compound leaf में क्या होता है, जो इंसिजन होती है, तो मार्जिन की इंसिजन that touches to the tip of the petiole. So many leaflets, numbers of leaflets that arise from the tip of the petiole. Common points arise होता है. So the leaflets are attached at a common point. At a common point, and that point is tip of the petiole. तो यहाँ पर एक्चुअली हम दो एग्जाम्पल देंगे. एक एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, दैट इज सिल्क कटन. अनदर एग्जाम्पल हम देंगे आइजल, वुड एप्पल, जो आपको अब जो उसको बोलते हैं उड़िया में बेलो. सो बेलो पत्र. सो उसका जो वुड एप्पल है, बेलो है, उसका जो लीव्स है उसमें 3 पत्ते होते हैं. जो आपको मालूम है कि शिव जी के माथे पर उसको एक्चुअली अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है. वो बेल पत्ता है, उसमें 3 लीफ होते हैं. एग्जाम्पल आइजल, उसका साइंटिफिक नेम है आइजल, और उसको बोलते हैं वुड एप्पल. बेलों को बोलते हैं वुड एप्पल. यहाँ पर आप देखिए, इसमें टिप ऑफ द petiole में 3 लीव्स है. ठीक है, दिस वन इज द टिप ऑफ द petiole. यहाँ से एक पॉइंट से सारे लीव्स निकले. तो नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है आपके बुक में, बोम्बास, दैट इज सिल्क कटन. उसमें 9 लीव्स है.
follow the diagram of NCERT. सिल्क कॉटन के जो डायग्राम है, you can follow that diagram. सिल्क कॉटन के लीव से sorry it's not the diagram. टिप ऑफ द पिट्यूल में ये निकलेगा. नीम का डायग्राम हो गया. राइट डायग्राम इस राइट डायग्राम ये है. So that has been originated from the a common point. The common points of origin हुआ है. It is silk cotton. Bombax is known as, इसका पूरा नाम है Bombax mori and is called as silk cotton. So this is your type of leaves are come to the end. Next we'll go to the phyllotaxy. Phyllotaxy का मतलब है mode of arrangement of leaves on a branch. क्योंकि डाली जो होता है, प्लांट की जो ब्रांचेस होता है, डाली होता है, उसमें leaves का किस ढंग से अरेंजमेंट है, क्योंकि उस अरेंजमेंट भी इम्पोर्टेंट है. अगर एक लीफ के ऊपर दूसरा लीफ ओवरलैप हो जाएगा तो नीचे वाला लीफ को सनलाइट नहीं मिलेगा. So this type of arrangement is called phyllotaxy. And phyllotaxy is very much required for getting the optimum light of the leaves. The leaves जैसे अच्छी तरह से light पा सके, इसलिए this is arrangement. The particular arrangement is there, that is known as phyllotaxy. So pattern of arrangement of leaves on the stem or branches, that is called as phyllotaxy. Pattern of arrangement of leaves on stem or branches to get optimum light. On stem or branches to get optimum light. So three types of phyllotaxy are there. Number one, alternate. Number two, opposite. Number three, pole. देखिए इस तीनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि अल्टरनेट. अच्छा, आपको मालूम है कि लीव्स हमेशा नोड से ही अरेंज होती है. अगर एक नोड में एक लीफ होगा दैट इज अल्टरनेट. इन अपोजिट में एक नोड में टू लीव्स होगा और होल में एक नोड में दो से ज्यादा लीफ होता है. तो ये वन लीफ एट ईच नोड. अपोजिट में टू लीव्स एट ईच नोड. होल में मोर देन टू लीव्स, मतलब तीन हो सकता है, चार हो सकता है, मोर देन टू लीव्स एट ईच नोड. This is the basic difference between the alternate, opposite, and pole phyllotaxy. तो अब देखेंगे अल्टरनेट का. तो ये स्टेम है, ठीक है, और these are the nodes. तो हर नोड में एक ही लीफ होगा. one leaf at each node. So this is first node, this second node, third node and fourth node. तो हर एक नोड में एक एक लीफ है. तो आप देखिएगा
फर्स्ट नोड में भी एक लीफ, सेकंड नोड में भी एक लीफ, थर्ड नोड में भी एक लीफ, तो ये है अल्टरनेट। अपोजिट में क्या है देखिए, इसे बहुत सारे नोड है और हर नोड में दो दो लीफ होगा। यहाँ पर भी हमने 4 नोड दिखाए हैं, यहाँ पर लेकिन एक लीफ एक नोड पर और यहाँ पर 2 लीफ, हर नोड पर 2 लीफ, ये है अपोजिट। You can follow the diagram of our NCERT book, page number 71. 71 का डायग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। ए बी सी दिया है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। ठीक है, तो वहां पर लिखा क्या है, ए सिंगल लीफ अरेंजेस ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। देखिए इस साइड में राइट साइड में एक लीफ है तो उसका लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड, तो अल्टरनेटली है, जैसे इट इज कॉल्ड अल्टरनेट। लेकिन इसका फंडामेंटल कैरेक्टर है हर नोड में एक ही लीफ होगा। ठीक है, सिंगल लीफ अरेंजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। इन अल्टरनेट मैनर। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है चाइना रोज, जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसका नाम है, चाइना रोज है। ठीक है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, तो हिबिस्कस, दैट इज चाइना रोज। उसमें ब्रासिका, ब्रासिका है मस्टर्ड, सनफ्लावर, सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम है हेलियनथस, इज सनफ्लावर। ये तीनों एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी देख लीजिए। अपोजिट में हर नोड में 2 लीव्स होता है। अपोजिट में a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. a pair of leaf, एक नोड में 2 लीफ है, पेयर ऑफ लीफ, लेकिन वो दोनों अपोजिट है। हर नोड में पेयर ऑफ लीफ होता है और वो पेयर ऑफ लीफ अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, ए पेयर ऑफ लीव्स arise at each node, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other and lie present, lie not present, lie opposite to each other. Okay, तो इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का मतलब क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। कैलोट्रोपिस एक साइंटिफिक नेम है, इसका इंग्लिश नेम है मडर प्लांट। एग्जांपल है कैलोट्रोपिस मडर, इसको बोलते हैं उड़िया में बोलते हैं अरखा, अरखा गछ। कैलोट्रोपिस इंग्लिश नेम है मडर। दूसरा है गुआवा। गुआवा आपको अमृत बोलता है, सीडियम, इसका साइंटिफिक नेम है सीडियम, SIDIUM, सीडियम है गुआवा। सीडियम इज गुआवा। Next we will go to hold phyllodes. Hold.
नोड में 5 लीफ बनाया हूं। इस नोड में भी इस टाइप का 5 लीफ होगा, ठीक है। इस नोड में भी होगा। तो मोर देन 2 लीव्स, when more than 2 leaves are present, that is known as, हर नोड में, each नोड में more than 2 leaves present, that is called whole phyllotaxy. As you can see in your diagram of page number 71, more than 2 leaves arranged at a node. This is whole. This phyllotaxy is known as whole phyllotaxy. Whole. That means more than 2 leaves arranged at a node. More than 2 leaves arranged at a node. Clear? And for a core, होल टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं होल। तो होल फॉर्मेशन हुआ है इसलिए उसको बोलते हैं होल फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल है अल्स्टोनिया, एक प्लांट है अल्स्टोनिया। ये अल्स्टोनिया प्लांट ये छतरी के टाइप दिखाई देगा, क्योंकि पेड़ में जो नोड होगा वहां पर बहुत सारे लीव्स एक जगह से निकलेंगे, तो ये छतरी टाइप अम्ब्रेला टाइप का दिखाई देगा, इसलिए उसका ओडिया का नाम है छत्ताबर। छत्ताबर इसका ओडिया नाम है, जो जेनस नेम है अल्स्टोनिया। Next we go to the modification of this. Next is the modification of leaves. Already कुछ modification already we have studied. जैसे आपने ऑलरेडी हमने स्टडी किया, जब पिट्यूल स्टडी कर रहे थे आप देखेंगे वहां पर हम टेंड्रिलर पिट्यूल बनाए थे टीचर प्लांट का। सो पिट्यूल इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, वो एक टाइप का मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का मतलब लीव्स का कोई भी हिस्सा मॉडिफाई हो सकता है या फिर एंटायर लीफ भी मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। सो लीफ का कुछ हिस्सा टेंड्रिल भी बनेगा। आपका जो एनसीईआरटी पहले में कवर कर लूं क्या क्या दिया है। सो एनसीईआरटी में क्या दिया है, leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. ये modification of purpose क्या है? Perform some extra functions other than photosynthesis. ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला पॉइंट है। तो लीफ की मॉडिफिकेशन क्यों होता है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो लीव्स का जो जनरल फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन के लिए लीफ को मॉडिफाई करना जरूरी है। तो दैट इज मॉडिफाइड फॉर सम परफॉर्मिंग सम एक्स्ट्रा फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। इसके बाद लिखा है दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीच। उसने सिर्फ दिया क्या है वो कंसाइज करके सेट में दिया है, मॉडिफाइड टू टेंड्रिल एज इन पी, यानी पी प्लांट में लीव्स मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। वो एक ही एग्जांपल दिया है पी में, और वहां पर वो नहीं लिखा है पी का कौन सा पार्ट मॉडिफाई, लीफ का कौन सा पार्ट, क्या पूरा लीफ मॉडिफाई है। जैसे कि आपने एक जब हम अपेक्स स्टडी कर रहे थे आपने स्टडी किए क्या, ग्लोरियोसा प्लांट का लीफ का अपेक्स टेंड्रिल हुआ है,
लेकिन इसने पी प्लांट दिया है और लीफ बिकम्स टेंड्रिल लिखा है, इसमें कौन सा पार्ट टेंड्रिल नहीं दिया। तो एक ही एग्जांपल दिया है कि टेंड्रिल जो बना है क्लाइंबिंग पर्पस, कंपेयर टू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीस, ठीक है। लेकिन हम उसको थोड़ा डिटेल देंगे। नंबर 1, मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स। इसका सब एग्जांपल्स होंगे। लीव्स मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, लीफ का कुछ लीफ आइदर एंटायर लीफ हो या उसका पार्ट हो, फॉर क्लाइंबिंग, पर्पस से क्लाइंबिंग। इसका एग्जांपल हम देंगे। वो एग्जांपल में दिया है पी दिया है एग्जांपल, हम अभी उसको देंगे। लीफ एपेक्स बिकम टेंड्रिल। नंबर 1, लीफ एपेक्स टेंड्रिल बना है। आपको मालूम है ना टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल इज ए स्प्रिंग लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है ग्लोरियोसा। इसका तो हमने ऑलरेडी जब स्टडी कर रहे थे लीफ एपेक्स का डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ एपेक्स, उस समय में हम ये स्टडी कर चुके हैं। लीफ एपेक्स बिकम टेंड्रिल, स्टिप्यूल बिकम टेंड्रिल। आपको मालूम है ना स्टिप्यूल? लीफ एपेक्स का टेंड्रिल का ऑलरेडी डायग्राम हो चुका है। तो देखिए ये स्टेम है और ये लीफ है। यहाँ पर तो छोटे छोटे लीफ जैसा अपेंडेज रहता है, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। अगर ये स्टिप्यूल मॉडिफाई हो जाएगा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देन इट बिकम्स अ टेंड्रिल। इसका मतलब स्टिप्यूल मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टिप्यूल्स बिकम टेंड्रिल, ठीक है। और ये किस प्लांट में दिखाया है? ये दिखाया है स्माइलैक्स प्लांट में। एग्जांपल है स्माइलैक्स। लीफ एपेक्स बिकम टेंड्रिल एंड स्टिप्यूल्स बिकम टेंड्रिल। ऑलरेडी यू नो दैट पिटियोल, जो हमने आपको बताए थे, पिटियोल बिकम टेंड्रिल, इसमें बताए थे नेपेंथेस प्लांट में। एग्जांपल नेपेंथेस। और भी एक एग्जांपल दिए थे वहां पर क्लेमाटिस। नेपेंथेस है टीचर प्लांट। नेपेंथेस है टीचर प्लांट। टीचर प्लांट में द पिटियोल जो स्टॉक होता है लीफ, वो पिटियोल बिकम टेंड्रिल, ठीक है। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? लीव्स मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। तो लीफ का कौन सा पार्ट टेंड्रिल में मॉडिफाई हो रहा है वो हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है एंटीरियर लीफलेट्स। यहाँ पर एग्जांपल आ गया एंटीरियर लीफलेट्स। ये प्लांट का एग्जांपल दिया था इसमें इंसेक्ट में जो लीव्स बिकम मॉडिफाइड, लीव्स मॉडिफाइड टू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग पर्पस, एग्जांपल पी दिया था। एक्चुअल टी प्लांट में एंटीरियर लीफलेट्स मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। एग्जांपल है पी प्लांट, जो जिसको हम बोलते हैं पाइजम सैटिवम, गार्डन में। दोस्तों देखिए पी प्लांट में कंपाउंड लीफ है, क्योंकि यहाँ पर लीफलेट दिया है तो वो सिंपल लीफ नहीं है। और ये नोड है और ये रैचिश है और ये इनेटली कंपाउंड, ठीक है। इनेटली कंपाउंड तो उसमें क्या है, लीफलेट के कुछ एंटीरियर लीफलेट टेंड्रिल हो जाएंगे। देखिए ये जो एंटीरियर लीफलेट, ये लीफलेट ना रहते ये टेंड्रिल हो जाए, ये लीफलेट भी ना रखे ये भी टेंड्रिल हो जाए। सारे लीफलेट टेंड्रिल नहीं होंगे, ओनली एंटीरियर लीफलेट बिकम टेंड्रिल। So anterior leaflets become tendril, that is in pea plant, ठीक है। एंड कुछ और भी प्लांट है जिसमें कि टोटल लीफलेट, यानी कि टोटल लीफलेट मतलब टोटल लीफलेट बिकम टेंड्रिल, होल लीफ बिकम टेंड्रिल। टोटल लीफलेट मतलब होल लीफ। इसमें पी प्लांट में ओनली एंटीरियर लीफलेट बिकम टेंड्रिल। ये है गार्डन पी। गार्डन पी और कुछ प्लांट है जैसे कि वाइल्ड पी, स्वीट पी, उसमें all leaflets, not only anterior, all leaflets become tendril.
all leaflets become tendril, entire leaflet यानी कि whole leaf। तो आप यहाँ पर पूछेंगे अगर whole leaf या entire leaflet अगर tendril हो जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? एक ही बार में नहीं हो जाएगा। जैसे ही प्लांट ग्रो होते हुए जाएगा, पुराने जो लीफलेट होंगे वो टेंड्रिल बनते जाएंगे, कुछ लीफलेट रहेंगे, कुछ लीफलेट टेंड्रिल होंगे, लेकिन एक डाली का सारे लीफलेट टेंड्रिल हो जाएंगे। फिर नया जब लीफलेट निकलेगा वो लीफलेट होके रहेगा, लेकिन पुराना वाला टेंड्रिल बन चुका है। तो ये नया लीफलेट जब टेंड्रिल बनेगा फिर नया लीफलेट निकलेगा। तो पूरा प्लांट का टोटल लीफलेट टेंड्रिल नहीं होता है, एक साथ में नहीं होता है, बारी बारी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे लिखे, जिसे हम आपको बता रहे हैं कि एंटायर लीफलेट मतलब एक ही ब्रांच का लीफलेट, पूरा प्लांट का एंटायर लीफलेट। ठीक है, सो एंटायर लीफलेट और होल लीफ बिकम टेंड्रिल, एंटायर लीफलेट होल लीफ, एक ब्रांच का होना, पूरा प्लांट का नहीं, क्या बिकम टेंड्रिल। इसका एग्जांपल है लाथिरॉश, ओडोराटॉश, ये है स्वीट पी, और एक है लाथिरॉस अल्फाका, ये है वाइल्ड बॉय। ठीक है, इस दोनों प्लांट में एंटायर लीफलेट ऑफ ए ब्रांच आर मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। नेक्स्ट आपका इंसर्ट है स्पाइन्स, ये हमारा क्या मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स। Next is modified to spines. Modified to spines. तो जो स्पाइन में मॉडिफाई हुआ है ये फॉर डिफेंस पर्पस, और डिफेंस पर्पस। ये कैक्टस प्लांट का एग्जांपल दिया है आपको बुक में, डिफेंस पर्पस as in cacti लिखा है, मतलब कैक्टस प्लांट। तो आपको देखेंगे कैक्टस प्लांट जो ड्राई रीजन में रहता है उसमें लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन्स। ठीक है, सो देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम इधर दे रहे हैं एग्जांपल, स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड टू स्पाइन, स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड टू स्पाइन, हम स्पाइन देखेंगे। जैसे प्लांट है, ये नोड है, एक लीफ है, यहाँ पर दो स्टिप्यूल होता है, दो स्टिप्यूल, ये स्टिप्यूल चेंज हो जाएगा, ये स्पाइन हो जाएगा, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर स्पाइन। तो इसका एग्जांपल क्या है? जिजीफॉस। जिजीफॉस से साइंटिफिक नेम, इसका इंग्लिश नाम है इंडियन जुजुबे। कौन सा प्लांट है? कॉमन नाम क्या है? इसको कोरिया में बोलते हैं बराकोड़ी। ये एडिबल, इसका जो फ्रूट है एडिबल है, उसको कोड़ी बोलते हैं, बराकोड़ी, बराकोड़ी गच्छा। उसका इंग्लिश में इंडियन जुजुबे। उसमें स्टिप्यूल्स बिकम स्पाइन्स। और एक एग्जांपल हमने दिए थे पहले, लीफ मार्जिन। आपको याद होगा जब हम लीफ के अपेक्स मार्जिन बताए थे, वहां पर स्पाइनस मार्जिन बताए थे। So leaf margin becomes spines. So leaf का जो धार है ना margin, that becomes spine. So उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है आर्जेमन। वहां पर भी हमने एग्जांपल दिए थे, उसको स्टडी कर लीजिएगा। आर्जेमन, आर्जेमन का नाम इंग्लिश नाम वहां पर हम दिए थे प्रिक्लिपिया, प्रिक्लिपिया प्लांट आर्जेमन। ओके, leaf apex becomes
स्पाइन, वहां पर भी हम देख रहे हैं स्पाइनस अपेक्स, जब आप स्टडी कर रहे थे स्पाइन, उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं, डेट पाम यानी फोएनिक्स, खजूर का जो पेड़ है फोएनिक्स, फोएनिक्स है डेट पाम, उड़िया में उसको बोलते हैं खजूरी गछ। तो खजूर का जो पेड़ है ना उसका लीफ स्पाइनस, ठीक है। उसके बाद है आपको मालूम है फ्लेशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड और फूड स्टोरेज, मॉडिफाइड और फूड स्टोरेज। Leaves modified for food storage. इसका एग्जाम्पल है ओनियन एंड गार्लिक। आपने स्टडी क्या होगा, आपने स्टडी क्या होगा कि जब हम स्टेम स्टडी कर रहे थे, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, तो उसमें एक बल्ब था, जैसे कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम में कीबोर्ड था, कॉर्म था, राइजोम था, एक बल्ब था। तो बल्ब का एग्जांपल ओनियन था। वहां पर वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है और उसका जो लीव्स फ्लेशी बन जाता है और वो एडिबल है। हम जो प्याज और लहसुन का जो पास खाते हैं ना वो एक्चुअली फ्लेशी लीव्स है, तो दैट इज फॉर फूड स्टोरेज होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेशी लीव्स। So, onion and garlic का fleshy leaves store food. ये सब modified leaf है, क्योंकि उसका स्टेम भी modified है ना, वो अंडरग्राउंड modified स्टेम है, तो उसका leaves भी modified है, fleshy बन गया, फूड स्टोर किया, तो वो edible है। और आपको ये बताए थे modified to phyllode, फाइलोड हमने आपको बताए थे जब हम स्टडी कर रहे थे पीटीओल लीफ का स्टॉक, एक ऑस्ट्रेलियन अकासिया प्लांट बताए थे, अकासिया मेलानोजाइलम। उस प्लांट का जो लीफलेट्स होता है वो बहुत जल्दी वो गिर जाता है, शॉर्ट लिव्ड, छोटे-छोटे शॉर्ट लिव्ड, तो उसका जो स्टॉक है लीफ का स्टॉक पीटीओल वो ब्रॉड एंड ग्रीन बन जाता है और फोटोसिंथेसिस वही बात होता है, उसका नाम है फाइलोड। वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। The petioles expand, become green and synthesize food. So petiole expands, become green and photosynthetic, तो synthesize food. उसी को बोलते हैं फाइलोड। तो इसमें petiole modified to phyllode, तो यहाँ पर लीफ के जो पीटियोल होता है वो मॉडिफाइड टू फाइलोड, और फाइलोड क्या है, ग्रीन एक्सपैंडेड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो ये इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकासिया, ये ऑलरेडी पीटियोल पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। अकासिया मेलानोजाइलम, ऑस्ट्रेलियन अकासिया, ठीक है। सो लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स, the insectivorous plants. Modified to trap insects. In insectivorous plants. तो insectivorous plant आपको मालूम है, तो insectivorous plant they trap insects to derive the nitrogen from insect body, because they grow in such type of soil where nitrogen deficiency occurs. So in order to compensate the nitrogen
in their body they have to trap the insects. So insectivorous plant में पिक्चर प्लांट ऑलरेडी तो हम डायग्राम जब टेंड्रिलर पिट्यूल बनाए थे उसका पिक्चर का डायग्राम बनाए थे कि लीफ लैमिना पिक्चर हो गया है और लीफ एपेक्स उसका लीड बन गया है. लीफ लैमिना ये चेंज हो गया है, ठीक है ना. तो इसका जो नाम है पिक्चर प्लांट. तो एग्जाम्पल है नेपेंथेस. नेपेंथेस है पिक्चर प्लांट. ओके. और एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया है, इसका नाम है वेनस फ्लाई ट्रैप. वेनस फ्लाई ट्रैप उसको बोलते हैं डायोनिया. डायोनिया इज वेनस फ्लाई ट्रैप. इस दोनों प्लांट में leaves are modified in such type that helps in trapping the insects. So ये दोनों insectivorous plant. और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम दे देते हैं, एक ये दोनों insectivorous plant है. ये दोनों एग्जाम्पल insectivorous plant का. एक नॉन insectivorous plant है. नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर, ये भी पिक्चर प्लांट है. नॉन इसका नाम है डिस्चिडिया. इट स्टोर्स वाटर. तो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं. पिक्चर प्लांट का डायग्राम हमने बताए थे जब पिट्यूल हम समझाए थे, उस टाइम पे हम पिक्चर प्लांट का नेपेंथेस जो है इंसेक्टिवोरस पिक्चर है, इसका डायग्राम हमने बनाया. और एक पिक्चर है जो कि नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर है, वो डिस्चिडिया प्लांट में दिखाया था. उसका लीफ भी नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर. पिक्चर का मतलब है कंटेनर, अरे स्मॉल वेसल लाइक स्ट्रक्चर. तो एक घड़ा लाइक स्ट्रक्चर और उसका बोलिया बोलते ढाड़ा. ठीक है. सो उस टाइप का स्ट्रक्चर पिक्चर बोलते हैं. सो ये नेपेंथेस इंसेक्टिवोरस पिक्चर है, डिस्चिडिया नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर है. तो ये इंसेक्ट, ये इसका पिक्चर इंसेक्ट ट्रैप करता है, इसका पिक्चर ओनली स्टोर करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेम में वो है, यहाँ पर एक पिक्चर बन गया. इसका लीड नहीं होता है, आप देखिएगा इसका अंदर सब रूट्स सब डेवलप हुआ है, एल्वेडिसस रूट्स. ठीक है. तो इसमें पानी रहता है. आप देखिएगा कि इंसेक्टिवोरस जो पिक्चर प्लांट लेते उसका लीड होता है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन है, इसका कोई लीड नहीं होता है और इसमें वो पानी स्टोर करता है. तो ये नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर है. So with this your leaf comes to end.